Okay student, welcome back to B tutorial, and we are going to start set theory 1.4 exercise 1.4. Before going to start exercise, first we go to some important points like difference of two sets, union of two sets, and difference of sets. So first know some important point. Union of two sets. If A and B are two sets and those elements which are present in A or in B is called union of two sets. It is denoted by union, this symbol. Now example, let A is equal to 2, 3, 4 and B is equal to 4, 5, 6. Now A union B इक्वल टू क्या होगा, दोनों के एलिमेंट को मिला करके लिख देना है 2, 3, 4, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the common element which is present in A union B. Element from A and B both are present in A union B. तो क्या करना है, A का एलिमेंट और B के एलिमेंट को मिला करके लिख देना है. दिस इज कॉल्ड A union B. Now symbolically it is represented as इसका A union B इक्वल टू क्या होगा, X such that X is element A or X is the element of B. This is symbolic representation of A union B. Okay, this is X such that X is the element of A or X the element of B. So it is symbolically representation. Now come to pictorial representation. This is pictorial representation. So it is denoted by tabular form, two sets, one circle denote A, another denote B. Okay, so A union B में क्या होगा, सारे जगह प्रेजेंट होगा. A union B का एलिमेंट प्रेजेंट इन A and B. A union B. This indicate A union B. Okay. So this is a pictorial representation and this is a symbolically representation of A union B. Now come to properties of A union B. Operation of union. Properties of operation of union of sets. Clear? So first A union B equal to क्या होगा, B union A. This is called commutative law. Commutative law. This represent commutative law. A और B को मिला करके लिखे या B और A को मिला करके लिखे. Both are same. So it is commutative law. Next, A union B union C. A union B and B union C. So it is
एसोसिएटिव लॉ। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बोथ विल सेम। ओके, so this is the law of identity, and this is idempotent law, and this is universal law. So this is the property of union of sets. Now come to intersection of sets. So what is intersection of sets? Intersection of sets इसका डेफिनेशन क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, सेट of all those elements which are present in both A and B. That is called intersection of sets. Intersection of set A and B is the set of all those elements which are present in both A and B, जो A और B दोनों में कॉमन हो. It is denoted by intersection. This is the symbol. Now take one example. Let A equal to A, B, C, D and B equal to C, D, E, F. So A equal to A, B, C, D and B equal to C, D, E, F. So A intersection B equal to क्या होगा? Which is common to both A and B, जो दोनों में कॉमन हो. तो यहाँ C और D को क्या देख रहे हैं? दोनों में प्रेजेंट है. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? C and D. ठीक है, तो यही हमारा कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी. अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी. क्या हुआ? x such that x is element of A and x is element of B. तो इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे. नाउ कम टू पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक डायग्राम बना लेंगे इन टेबुलर फॉर्म. नाउ टेक टू सर्किल, वन रिप्रेजेंट A, another represent B. So this part is common to both A and B. ये पार्ट कॉमन है, A का भी एलिमेंट प्रेजेंट है और B का भी एलिमेंट प्रेजेंट है. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? दिस पार्ट इंडिकेट्स A इंटरसेक्शन B. दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताना है. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला प्रॉपर्टीज है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. अगर होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे?
कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ होता है ये, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जिससे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हो जाता है। अगर इसको प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए सेम होगा, तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ a प्लस और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, अगर दो इंटीजर है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ प्लस की जगह क्या है, इंटरसेक्शन है, सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट क्या है, अगर हम फाई इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो फाई और इंटरसेक्शन ए में, फाई और ए में क्या कॉमन है, फाई होगा कॉमन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फाई, ठीक है, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई, क्लियर। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन ए हमें लें तो क्या होगा, ए ही होगा, ए और ए में क्या कॉमन होगा, इसे हम बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में क्या कॉमन होगा, ये ही होगा, क्लियर। नाउ फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत बार आएगा प्रूफ वगैरह में। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और ए यूनियन यहाँ आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया, दिस इज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बी के साथ में भी और सी के साथ में भी, तो दिस इज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, नोट कर लो। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, क्लियर है, नेम इटसेल्फ क्लियर। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द set of all those elements which are present, which are belongs to A but not to B, ठीक है। क्या डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, जो ए के साथ है लेकिन बी के साथ नहीं है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए माइनस बी भी बोलते हैं इसे, ए डिफरेंस बी। एग्जाम्पल सिंपल है, लेट ए इक्वल टू 3, 4, 5, 6 and B equal to 4, 5, 7,
ठीक है, 4 5 7। तो ए माइनस बी क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन वही है, ए में से बी को माइनस कर देंगे, ए में से बी वाले एलिमेंट को माइनस कर देना है। अब क्या है, 4 है यहाँ, ठीक है, 4 हट जाएगा, 4 इसमें भी है, 5 हट जाएगा, 7 इसमें नहीं है। तो ए में से बी वाले एलिमेंट को हटा करके सेम एलिमेंट को लिख देना है। तो क्या बचेगा हमारा, 3 and 6, दिस इज ए माइनस बी। ए में से क्या हो गया, बी माइनस हो गया, बी वाले ए में से बी वाले एलिमेंट को माइनस कर देना है, और रिमेनिंग जो एलिमेंट होगा दैट इज ए डिफरेंस बी और ए माइनस बी। तो दिस इज वेरी सिंपल। एंड नाउ कम टू दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, इसका सिंबॉलिक क्या होगा, x सच दैट x द एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। x एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग करता है लेकिन b का नहीं होगा, ठीक है। a माइनस बी में b का क्यों नहीं होगा, क्योंकि a में से b का क्या हो गया, माइनस हो गया, a से b का एलिमेंट हट गया, उसमें रहा नहीं। तो x a का एलिमेंट होगा लेकिन x b का एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर। नाउ कम टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नाउ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक टेबलर फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 सर्किल होगा, जो एक ए को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब a माइनस बी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी, ए में से क्या होगा, b को माइनस कर देना है, ठीक है। b वाले पार्ट को हमें कलर नहीं करना है, b वाले पार्ट को छोड़ करके कलर करना है। तो हमने क्या किया, b जब माइनस हो गया a में से, तो क्या किया, b वाले को हमने कलर नहीं किया है, दैट शोज दैट एलिमेंट डज नॉट प्रेजेंट इन b। a माइनस बी वाले जितने भी एलिमेंट होंगे a में होंगे, b में नहीं होंगे, a में प्रेजेंट होगा, b में प्रेजेंट नहीं होगा। तो a माइनस बी हो गया, और इसे a डिफरेंस b भी बोलते हैं। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर। नाउ कम टू एग्जाम्पल। नो एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज अब हम 1.4 करेंगे। ओके come to exercise 1.4. So let us start solve the given problem. Now come to question number 1. Find the union of each of the following pair of set. पहला क्या है, x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें क्या करना है, x यूनियन b निकालना है हमें, x यूनियन y। तो इसमें वैसे एलिमेंट होगा, x यूनियन दोनों मिला करके लिख देना है, x का भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और y का भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x में भी है, y में भी है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो गया एंड 5 हो गया, और 2 भी होगा, 1 2 3 5। ओके, 1 2 3 and 5. This is x union y. Now come to second. A equal to A, E, I, O, U. Vowel of English alphabet. Now come to B. B equal to A, B, C. So A union B equal to क्या होगा, सारे एलिमेंट लिख देना है, A, B, C, E, I, O, U। ए का भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम 3 पर आते हैं। 3 ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। नाउ कम्स टू बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। तो हम क्या, ए यूनियन बी लिखेंगे,
ए का भी एलिमेंट होना चाहिए इसमें और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो ए नेचुरल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एक्स सच दैट एक्स क्या क्या होगा, लेस देन 6। यहाँ नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1 2 4 5 and multiple of 3 और मल्टीपल ऑफ 3। तो दोनों कवर कर गया। यहाँ क्या हो गया, 1 2 4, इसका आ गया 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 जितना भी होगा सारे मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनियन बी, ए का भी एलिमेंट प्रेजेंट है और इसमें बी का भी एलिमेंट प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, 3 इसमें आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 तो यहाँ से 3 इसमें आ जाएगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी इसमें प्रेजेंट है। तो सेट ए और बी दोनों का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो दिस इज यूनियन बी। नाउ कम टू फोर्थ। एक्स है दैट इज नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड सेकेंड एक्स है दैट इज नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 10। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें एक ए का भी होना चाहिए एलिमेंट और बी का प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 is less than 6x and x is less than 10। ये हो गया ए यूनियन बी। ए का भी एलिमेंट है 1 to 6 and 6 to 10, लेस देन x इज लेस देन 6 इज लेस देन x। यहाँ 6 इंक्लूडेड है इसमें और इसमें 6 एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ 7 8 9 10 तक होगा, लेस देन 10 9 तक होगा। तो यही है 1 to 6 एंड 7 to 9, दोनों मिला के 1 से 9 तक। ठीक है, अब a इक्वल टू 1 to 3, a इक्वल टू क्या है 1 to 3 और b इक्वल टू 5 है। तो a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b इक्वल टू 1 to 3 होगा, 1 to 3। 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 5 क्या होता है, नल सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। तो इसमें तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो ए का ही एलिमेंट इसमें ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Number 2, let A equal to AB, B equal to ABC, is A the subset of B, what is A union B। हमें A और B दो सेट दिया हुआ है जिसमें A is the subset of B है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A is present in B, A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है। देन व्हाट इज A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या होगा। ठीक है, क्लियर है कि A यूनियन B क्या होगा, इज इक्वल टू ए और बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो लिखेंगे यस ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि दोनों को मिला करके लिख देंगे ए बी सी। कहने का मतलब किसके बराबर आ गया, ये बी के बराबर आ गया। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इक्वल टू बी, सेट बी। ठीक है, नेक्स्ट, if A and B are two sets such that A is the subset of B, then what is A union B। सेम वैसा ही है। ठीक है, अगर हम A इक्वल टू लेट A इक्वल टू बी सी एंड A is the subset of B, एक हमें ऐसा सेट लेना है जिसमें एक ऐसा सेट लेना है जो कि A is the subset of B होना चाहिए, B C D, यानी
ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या कंडीशन दिया हुआ? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, ये हमें गिवन दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी दो सेट इस तरह से है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। तो ए एक सेट लिया बी सी और बी सी डी ले लिया, तो क्या हो गया? ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन व्हाट इज ए यूनियन बी? अब हम ए यूनियन बी में क्या करेंगे? दोनों के सेट को मिला करके लिख देंगे, तो क्या होगा? बी सी डी। ये बी सी डी किसके बराबर आया? बी के बराबर आया। ठीक है, 1 2 एंड 3 ऑलमोस्ट सेम, जो इसमें निकालना था इसमें गिवन दिया हुआ है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, come to question number 4. If A equal to 1 2 3 4, B equal to 3 4 5 6 and C equal to 5 6 7 8, D equal to 7 8 9 and 10. तो ये हमें this is the sets A B C D are given sets and we have to find out A union B, A union C, B union C, B union D and A union B union C and likewise this question. Now come to 1. First, A union B. A union B में क्या होगा? A और B के एलिमेंट को मिला करके लिख देंगे। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। A का भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है और B का भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो A यूनियन B। नाउ कम टू सेकेंड, B यूनियन C। बी और सी के एलिमेंट को मिला करके लिख देना है, बी और सी। 3 4 5 6, 3 4 5 6, 5 6 यहाँ 7 8, 3 4 5 6 7 8। दिस इज बी यूनियन सी। नाउ कम टू थर्ड, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। इसमें क्या हो जाएगा? बी और डी के एलिमेंट को मिला करके लिख देना है। बी के एलिमेंट ए रहा और डी का एलिमेंट ए रहा। 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। दिस इज बी यूनियन डी, जिसमें बी और डी के दोनों का एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, नाउ कम टू फोर्थ। फोर्थ में क्या होगा? 1 2 3 4, बी यूनियन डी, बी यूनियन सी। ये एक्चुअली फोर्थ हो गया है, ये थर्ड होगा। थर्ड में क्या है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हो गया, ए यूनियन बी नहीं, सेकेंड रह गया, ये थर्ड हो गया, सेकेंड रह गया। सेकेंड में ए यूनियन सी निकालना है, ए और सी के मिला देना है। ए कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी में क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। दिस इज यूनियन सी। ठीक है, अब 3 सेट वाला है, तो 3 सेट वाला को हम अब करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या है? पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकालने क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और सी के साथ इसे मिला देंगे। यूनियन सी का क्या है? 5 6 7 8। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5 6 7 8। ये पूरा मिला दिया। ए यूनियन बी का भी एलिमेंट है और ए यूनियन सी का भी एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया हमारा। नाउ कम टू सिक्स, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन डी, डी का क्या हो गया 7 8 9 10, 7 8 9 10, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन डी, क्लियर। नाउ कम टू 7, बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू क्या होगा, बी यूनियन सी पहले मिला देते हैं, बी और सी का एलिमेंट 3 4 5 6, ठीक है। 7 8 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, बी और सी का हो गया। अब हम डी का मिलाएंगे, डी का 8 के बाद कितना है 9 10, 7 8 तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा, तो हमें जो नहीं दिया हुआ है 9 10 ये लिख दिया। अब इसमें आ गया बी सी और डी, तीनों का एलिमेंट आ गया, क्लियर। तो ये बी यूनियन सी यूनियन डी हमारा निकल गया। ओके, नोट डाउन करो। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एवं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया है, उसमें यूनियन से कराया है। सेम यूनियन के जगह हमें अभी इंटरसेक्शन करके कराना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 सॉल्व हो जाएगा। उसमें सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा देना है, और दो सेट में जो भी कॉमन होगा उसको हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे, तो सारा हो जाएगा। वो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप 6 करने जा रहे हैं, 6 में इतना प्रॉब्लम है कि इसको करने के बाद उसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिस आर क्वेश्चंस ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए और बी में कॉमन क्या है, यहाँ ए में देखेंगे और बी में जो भी कॉमन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ठीक है। तो 3 5 7 9 11, 7 9 11, 13 इसमें नहीं है, तो 7 9 11 यहाँ, 7 9 11 यहाँ है, तो हमें ये क्या हो जाएगा 7 9 11, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। जो भी कॉमन है दोनों सेट में, ए और बी में जो कॉमन है वही ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन सी। अब हम बी और सी में देखेंगे कि क्या कॉमन है। बी का ए रहा एलिमेंट और सी का ए रहा, 11 13 15, 11 13 यहाँ कॉमन हो गया, 11 13 यहाँ कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा 11 एंड 13, एलिमेंट विच इज प्रेजेंटेड बोथ सेट ए एंड बी विच इज कॉमन टू बोथ, तो वो क्या होगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब है थर्ड में क्या है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी। ए में क्या है 3 5 7 9 11, ए और सी में देखना है 11 है कॉमन है, और डी में कोई एलिमेंट नहीं, तो इसमें तीनों में कोई कॉमन नहीं है, क्या होगा 5, तो 5 हो गया। तीनों में क्या है कोई कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 5, इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आता है, तो इस सेट को क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। तो ये हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आया 5 नल सेट, तो क्या होगा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अभी हम जाते हैं ए इंटरसेक्शन सी में, ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, ए और सी में देखेंगे क्या कॉमन है, 11 सिर्फ कॉमन है, तो क्या लिख देंगे 11, ए इंटरसेक्शन सी। अब पांचवा में क्या है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, बी और डी में जो कॉमन होगा, बी और डी, डी यहाँ हो गया और बी यहाँ है, क्या है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा नल सेट, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नल सेट डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो अभी हमारा 5 तक हो गया। नाउ कैन नोट डाउन 5, नाउ गोइंग टू स्टार्ट 6।
सिक्स्थ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम पहले क्या निकालेंगे, इसमें बी यूनियन सी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी। बी और सी को मिला देंगे, बी और सी। 7 9 11, 7 9 11 13 15, दीज आर बी यूनियन सी। अब हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे बी यूनियन सी का। अब ए का एलिमेंट कहाँ, यहाँ 3 5 7 9 11। अब बी यूनियन सी का 7 9 11 13 15, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। तो हमें ए में क्या है कॉमन, 7 है, 9 है और 11 है। 7 9 11, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा 7th में क्या है, सिर्फ 2 सेट का है, ए इंटरसेक्शन डी। 2 में देख लेंगे, ए और डी में। ए में क्या है 3 5 7 9 11 और डी में क्या है 15 एंड 17। 15 एंड 17 तो कोई कॉमन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5, ठीक है, डिसजॉइंट सेट हो गया 7 तक। अब हमें है 8th में। 8th में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन डी निकाल लेंगे, बी यूनियन डी। बी और डी को हम देखते हैं, बी और डी क्या है, 7 9 11 13 और 15 17, ये हो गया बी यूनियन डी का। क्लियर, बी यूनियन डी हमारा निकल गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लगा देना। ए में क्या है, ये दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी यूनियन डी में क्या, किस में देखना है, ए में। और बी यूनियन डी में क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 9 11। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी 7 9 11। अब 8 तक क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बचा हमारा 9th। ओके, नाउ कम टू 9th। 9th में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए दोनों को, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी को हम सेपरेटली निकाल देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए और बी में क्या कॉमन हो गया, ए और यहाँ बी है, दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11, 7 9 11। और बी यूनियन सी में क्या है, ये मिला के लिखना है, बी और सी को 7 9 11, 7 9 11 13 और सी में 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, वो हमारा यहाँ हो जाएगा 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, नाउ कम टू 10th। हमारा 10th में क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन डी। ए यूनियन डी में क्या है, ए और डी में कॉमन, ए एंड डी। ए यूनियन डी नहीं, ए कॉमन है, मिला के लिख देंगे, कंबाइन कर देंगे, ए एंड डी 3 5 7 9, 3 5 7 9 11 और डी का क्या है 15 17, ये भी लिख देंगे, मिला देंगे। और बी यूनियन सी का क्या होगा, बी यूनियन सी, बी और सी का देखेंगे, बी और सी का 7 9 11 13 और 13 15 भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को हमें क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन है, कॉमन है। ये दोनों में जो कॉमन रहेगा वही यहाँ में लिखना है। तो इन दोनों में हमें कॉमन देखना है,
7, 9, 11, ठीक है, 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15. This is answer. A union B intersection B union C. Okay. Now come to question number 7. Okay. Come to question number 7. If A equal to x such that x is a natural number and B equal to x such that x is even natural number, C is equal to x such that x is an odd natural number and D equal to x such that x is prime number. मैं ब्रीफ में बता देता हूँ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर क्या है, तो इजी हो जाएगा. एक नेचुरल नंबर काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं. नंबर विच कैन बी काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And B equal to even natural number. Even natural number 2 multiple of 2, 2, 4, 6, 8 and so on. C equal to x such that x is an odd natural number. Odd natural number में क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 like that and so on. D equal to x such that x is a prime number. Prime number which is divided by itself, number itself, that is called prime number. 1, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11. 9 नहीं होगा, 9 और नेचुरल नंबर है, ठीक है, बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो, 9 ऑल्सो इटसेल्फ. नंबर जो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड इटसेल्फ, नंबर से उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम ए इंटरसेक्शन बी क्या है. पहला ए इंटरसेक्शन बी. अब ए इंटरसेक्शन ए में क्या है, नेचुरल नंबर है, और बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है. तो ए दोनों में क्या कॉमन होगा, नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर में क्या होगा, ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है. इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर. तो इसमें क्या करेंगे, इवन और ऑड दोनों में से अगर हम इवन को माइनस कर लेते हैं तो ये क्या बच जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज एंड ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है. तो ये क्या आ गया हमारा, ऑड नेचुरल नंबर हमारा किसका दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है. इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी इवन नेचुरल नंबर, ठीक है. तो कॉमन क्या होगा, बी ना होगा कॉमन, बी, क्योंकि इसमें ऑड नेचुरल नंबर भी है और इवन नेचुरल नंबर है. यहाँ इवन नेचुरल नंबर है, तो ए बी में क्या कॉमन है, इवन नेचुरल नंबर. तो इवन नेचुरल नंबर होगा, यहाँ ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा, इवन नेचुरल नंबर. सो इट इज बी, ठीक है. सेकेंड ए इंटरसेक्शन सी. ए और सी में हम देखते हैं, यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है ए में, और सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है. ए में क्या है, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर है, और सी में ऑड नेचुरल नंबर है. तो हम अगर दोनों में कॉमन देखते हैं तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एंड ऑड नेचुरल नंबर. सो इक्वल टू वी कैन राइट सी, वी कैन राइट सी, क्योंकि ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर बता रहा है. सी क्या सेट बता रहा है, ऑड नेचुरल नंबर को बता रहा है. नाउ कम टू थर्ड ए इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन डी, ये तो क्या है पता ही है, नेचुरल नंबर और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है. और सी क्या है, थर्ड में डी क्या है, एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या है, ए में भी है, क्योंकि इसमें तो नेचुरल है और ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है काउंटिंग में. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर. तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डी. इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन आया, डी के बराबर आया, प्राइम नंबर ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर इसमें भी है और इसमें है, तो कॉमन क्या होगा, प्राइम नंबर. तो ये सेट डी के बराबर होगा. नाउ कम टू फोर्थ. अब हम फोर्थ में क्या देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी. बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर. तो दोनों में कोई
कंबाइंड है, दोनों में कोई कॉमन है कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5, कोई कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 5th पर। 5th में हमारा क्या दिया हुआ है B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, B और D में हमें कंपेयर करना है। B कहाँ है, B एंड D, B क्या है इवन नेचुरल नंबर और D क्या है प्राइम नंबर। तो एक नंबर ऐसा है कि इसमें भी प्राइम है, 2 क्या है प्राइम नंबर भी है इवन नंबर भी है नेचुरल नंबर, तो इसमें 2 है इवन भी है और प्राइम भी है, तो प्राइम आ गया, इसमें सिर्फ 2 होगा। B इंटरसेक्शन D में क्या हो गया 2 हो गया। अदर देन 2 ऑल आर ऑड नेचुरल नंबर, ऑड है में आएगा डिविजिबल बाई इटसेल्फ। B इंटरसेक्शन D हो गया। अब C इंटरसेक्शन D 6 में, C इंटरसेक्शन D, C और D में देखना है, C और D में ये क्या है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, C ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और D किसका सेट है x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या है प्राइम नंबर भी है, 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, इसमें ऑड नंबर में भी है, तो इसमें क्या होगा ऑड प्राइम नंबर आएगा। इसमें 2 भी आ सकता है लेकिन 2 इसमें नहीं आएगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा x इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, come to question number 8. Which of the following pair of sets are disjoint? इसमें जो दिया हुआ है कंडीशन उसमें कौन सा सेट डिसजॉइंट है। हमने पहले बताया था if A and B are two sets and A intersection B is equal to 5, अगर A intersection B equal to 5 आता है तो क्या होता है डिसजॉइंट सेट होगा। क्या होगा डिसजॉइंट सेट, इसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें देखना है, कंडीशन यही है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 आना चाहिए। अब पहला है कि 1 2 3 4, ठीक है, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू क्या है नेचुरल नंबर, कंडीशन लगाया हुआ है कि 4 से 6 तक होना चाहिए। 4 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो 4 5 6, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, क्या है 4 इज कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया, तो ये क्या होगा डिसजॉइंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दिस सेट आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, पहला क्या हो गया नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड, ए इक्वल टू क्या है AEIOU, क्लियर, एंड बी इक्वल टू क्या है बी इक्वल टू CDEF, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू विच एलिमेंट इज कॉमन E is common to both A and B, so these are not disjoint set, this statement is also false, clear। next third, A equal to क्या है इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हो गया मतलब क्या होगा 2 4 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 एंड सो ऑन। B इक्वल टू क्या होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन दोनों में कोई कॉमन है, ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आएगा 5, तो दिस इज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, दिस इज ए डिसजॉइंट सेट, so it is we can say true, right? Okay, any doubt? This is very simple question. Okay, come to question number 9. If A equal to 3 6 9
12, 15, 18, 21. B equal to 4, 8, 12, 6, 10, 20. 4 का मल्टीपल है. And C equal to 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. This is multiple of 2. And D equal to 5, 10, 15, 20. This is multiple of 5 up to 20. Now we have to find A difference B, A minus B, A minus C, A minus D, B minus C. तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट में बताया था, डिफरेंस ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी. जो ए से बिलोंग करेगा वो बी से नहीं करेगा. यानी ए माइनस बी में क्या होगा, बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी. ए में सीधे बी को माइनस कर देना है नॉर्मल. जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 21 तक है. इसमें 4, 12. तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ठीक है, 12 कॉमन हो गया. क्लियर? और कोई कॉमन है? नहीं. 3, 6, 8, 12 में नहीं है. तो इसमें 3, 6, 9, 15, 18 और 21. ये सारे एलिमेंट हो गया ए माइनस बी का. सिमिलरली सेकेंड ए माइनस सी निकालना है हमें. ए में से सी को माइनस कर देना है. यहाँ ए का एलिमेंट है, यहाँ सी का एलिमेंट है. क्लियर? तो क्या होगा, 6 इसमें है, 6 है और कोई नहीं है. 6 and 12, 6 and 12. तो 6 and 12 इसमें माइनस कर देना है. बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सेम रहेगा. ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दिया. ए में क्या कर दिया, बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो क्या बचा है, 3, 9, 15, 18, 21. दिस इज ए डिफरेंस बी, ए माइनस ए डिफरेंस सी, ए माइनस सी. ठीक है. सिमिलरली ऐसे हम थर्ड का ए माइनस डी करेंगे. ए में से डी को माइनस करेंगे. ए का एलिमेंट हो गया और डी का एलिमेंट हो गया. क्या क्या कॉमन है, कोई कॉमन एलिमेंट 15 यहाँ कॉमन हो गया. 15 के साथ 15 और क्या है, 5 नहीं है, 10 नहीं है. तो क्या होगा, सिर्फ इसमें 15 माइनस कर देना है. 3, 6, 9, 12, 18 and 21. So this is the A difference B. सिमिलरली हम किसी को भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं. कोई भी रेंडमली हम ले लेते हैं. जैसे हम 9th का लिया, ठीक है, C माइनस डी. तो C में से D को माइनस कर देना है. C है और ये D का एलिमेंट है. C और D में क्या कॉमन है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है. और क्या है, 2, 4, 6, 8, बाकी कुछ भी नहीं है. तो बाकी एलिमेंट ये 10 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएगा C वाला. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. जैसे C माइनस डी. इस तरह से हम सारे कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट. क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चन you have to do yourself. If any problem, comment in comment box. Okay, come to question number 10. If x is equal to a b c d and y is equal to f b d g, find x minus y minus x and x intersection y. Come to one by one. x minus y क्या होगा, x में से y के एलिमेंट को माइनस कर देंगे. क्या है y के एलिमेंट इसमें कॉमन, b है, सिर्फ b है. तो b को एक से हटा देंगे, a c d. क्या होगा, a हट जाएगा, a c d हो गया. x माइनस वाई. सेकेंड y माइनस x. y में से अभी क्या करना है, इसमें से x को माइनस कर देना है. y वाले एलिमेंट से x वाले एलिमेंट को माइनस कर देना है. तो अभी हम क्या देखते हैं, कॉमन क्या है, b हो गया. तो b निकल जाएगा तो क्या बचेगा इसमें, y में f d g. दिस इज y माइनस x. नाउ थर्ड, x इंटरसेक्शन y. दोनों में कॉमन क्या है, ओनली b कॉमन है. तो इसमें क्या लिख देंगे, x इंटरसेक्शन y b हो गया. सिंपल.
बहुत ऐसा किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? क्या किया हमें, गिवन क्या है, ठीक है, R is the set of real number, R is the set of real number, clear, and Q is the set of रेशनल नंबर, क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन व्हाट इज R माइनस क्यू, क्या होगा, R माइनस क्यू क्या होगा, R माइनस क्यू इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, इट इज सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, क्यू प्लस इरेशनल नंबर, क्यू हो गया रेशनल, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इंडिकेशन क्यू, क्यू प्लस इरेशनल नंबर। अभी हमें R माइनस क्या बताएगा, अभी हमने क्या कहा कि R इक्वल टू हो गया Q प्लस आई आर, इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल। तो आई R माइनस Q, जब R में से Q को माइनस कर देंगे क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, क्या हो गया, इरेशनल नंबर। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? So this is question 11. Now come to question 12. Okay? Okay? Come to question number 12. State whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है whether it is true और false। करना क्या, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। पहली बात है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट का हमने क्या कंसेप्ट बताया था कि इफ A एंड B आर टू सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, देन A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। अगर A और B दो सेट है और A इंटरसेक्शन B, उसका इंटरसेक्शन अगर 5 आता है, 5 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट होगा। अभी हम ये सपोज इसको हम A मान लेते हैं और ये B है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आता है, A इंटरसेक्शन B कॉमन तीनों में है, दोनों में है, A और B में, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा और नॉट डिसजॉइंट सेट, सो इट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नाउ कम टू सेकेंड, दिस इज AIOU इंग्लिश वॉवेल अल्फ़ाबेट एंड दिस इज ABCD। तो इसे हम क्या मान लिया, सेट A, और ये क्या मान लिया, सेट B। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है हमें, अब हमें ये चेक करना है कि इंटरसेक्शन B इसमें क्या आता है। तो A और B में क्या कॉमन है, A इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा क्योंकि A इंटरसेक्शन B 5 नहीं है, एक सिंगलेटन सेट हो गया है, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट 2, 6, 10, 14, दिस इज सेट A एंड दिस इज द सेट B। 3, 7, 11, 15। अब A इंटरसेक्शन B, इसमें हम देखते हैं क्या कोई कॉमन है, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, कोई इसमें कॉमन नहीं है। क्या आ रहा है हमारा, इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, दिस इज डिसजॉइंट सेट, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट 2, 4, 2, 6, 10, दिस इज सेट A and 3, 7, 11, this is set B. Now A intersection B equal to what? कोई कॉमन नहीं है, 2, 6, 10 है, 3, 7, 11 है, तो क्या हो गया 5, तो क्या होगा, दीज आर डिसजॉइंट सेट। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज 1.4 इज ओवर, सो go through it properly. If any doubt, please comment in comment box.
and please share and care for